JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS, and we are going to start with a new chapter, chapter number 5, the climate of India, and this is session number 1 for this chapter. So before I start discussing regarding this chapter, let us just have a brief information regarding what we studied in our previous chapters. Okay, your chapter number 1 was globes and maps, in which you understood what do you mean by a globe, why is it important to learn how to read a globe, and what are the importance of maps, drawbacks of globe, ग्लोब क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते. देन मैप्स में हमने ये सीखा था कि मैप्स में कौन सी चीजें जरूरी है समझनी, जैसे कि डायरेक्शंस जरूरी है समझने के लिए. टू लोकेट एनी प्लेस, फर्स्ट थिंग यू शुड नो द डायरेक्शन इन विच दैट प्लेस इज लोकेटेड. सो ये सारी की सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. सेकेंड चैप्टर में डिस्कस रिगार्डिंग इंडिया में अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स है, उनमें से दो फिजिकल फीचर्स, द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. फिजिकल फीचर्स मींस इंडिया की जमीन कैसी है. ओके, द ज्योग्राफिकल डिविजन्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स जो भी है, उनमें से टू पार्ट्स वी डिस्कस. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, that is the Himalayas. We learned that there are 3 parallel ranges, the Himadri, Himachal and the Shivalik range. So we discussed that. Then in northern plains, we discussed regarding the northern plains which come towards the south of the northern mountains. Northern mountains से नीचे south में आओगे तो northern plains आपको मिलेगा. In that chapter we also discussed 3 important basins of India. The Ganga basin, the Brahmaputra basin and the Satluj basin. उनके बारे में हमने पढ़ा था. Then coming to the third chapter, again 2 physical features of India, that is the plateaus and the desert region. तो second chapter में 2, third chapter में again there are 2. In that we learn the plateaus and the desert region. Plateaus, 2 important plateaus, that is the Central Highland and the Deccan Plateau. सेंट्रल हाईलैंड में और 2 है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू. ओके, सो वी डिस्कस्ड ऑल दिस इन द प्लेट्यू रीजन. देन वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डेजर्ट रीजन विच इज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो है इंडिया में वो है डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड हरियाणा ऑल्सो. देन chapter number 4, again 2 physical features, that is the coastal plains and the islands. So second chapter में 2 physical feature, third में 2 physical feature, fourth में all together 6 physical features, फिर 6 physical divisions. fourth chapter में coastal plains and islands के बारे में हमने पढ़ा था. coastal plains, there are 2 coastal plains, the western coastal plain, eastern coastal plain. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 डिविजन्स हैं, द गुजरात कोस्ट, द मलबार कोस्ट एंड द कोंकण कोस्ट. एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में 2 डिविजन्स हैं, द नॉर्दर्न सरकार्स एंड द कोरोमंडल कोस्ट. ओके, देन वी लर्न अबाउट द 2 island groups of India, that is the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. Andaman Nicobar Islands are in Bay of Bengal. Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea. So we discussed all these in our previous sessions. So now India के physical divisions के बारे में आपको information already मिल चुकी है. Now we will discuss regarding the climate of India. India का climate कैसा है? Now you might ask me a question, okay, what is climate? आप में से कुछ बच्चों को शायद पता हो आंसर, but some of you will ask me the question कि what is climate? Climate क्या है? तो first thing कि अगर आप किसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हो तो वो क्यों पढ़ना है, उसकी जरूरत क्या है, why are we learning this chapter? Okay, so to know this first thing, climate के बारे में हमें इसलिए पढ़ना है कि
suppose if you when you grow up you would like to go for some picnics and all, आप पिकनिक जाना पसंद करोगे, तो आप ऐसी कौन सी समर सीजन में अगर जाते हो तो यू प्रेफर गोइंग टू सम कूल प्लेस। समर सीजन में अगर आप वेकेशंस में हॉलीडेज के लिए जा रहे हो तो आप कूल प्लेस पर जाओगे। वही अगर विंटर्स में जा रहे हो तो यू प्रेफर गोइंग टू सम हॉट प्लेसेस बिकॉज ड्यूरिंग समर इट इज इम्पॉसिबल टू गो देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राजस्थान साइड घूमने जाना है, करेक्ट, राजस्थान है या फिर नीचे साउथ इंडिया में जाना है, तो आप क्या टाइम प्रेफर करोगे? यस, नॉर्मली हम विंटर्स में पसंद करेंगे क्योंकि वहां पर जो है विंटर्स में ज्यादा ठंडी नहीं होती है, सो यू कैन एंजॉय, करेक्ट। एंड समर सीजन में आप जाना पसंद करोगे टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया, शिमला, कश्मीर, ऐसी जगह पर। क्यों? क्योंकि वहां पर कोल्ड होता है वेदर, तो यू विल एंजॉय देयर इन समर सीजन। समर में गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह पर जाते हैं, ठंडी से बचने के लिए गर्म जगह पर जाते हैं। बट ये सब कैसे हमें जानकारी मिलती है? क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट पता होना चाहिए, तो यू कैन डिसाइड इजीली, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। क्लाइमेट के बारे में अगर नहीं पता है तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लाइमेट क्या है? नाउ इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 289, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द चैप्टर। The word climate refers to the weather condition of a place over a long period of time. किसी भी जगह का वेदर कंडीशन बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज वेदर कंडीशन क्या रहती है उस जगह पर, उसके ऊपर से उस जगह का क्लाइमेट हम डिसाइड कर सकते हैं। वेदर जो है इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड, क्लाइमेट जो है इट इज फॉर लॉन्गर पीरियड। मे बी आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन द प्रीवियस ग्रेड ऑल्सो। प्रीवियस ग्रेड में भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, बट इस ग्रेड में वंस अगेन वी आर जस्ट रिवाइजिंग दैट थिंग्स। ओके, सो वेदर क्या होता है? जो शॉर्ट पीरियड के लिए वो उसे वेदर कहते हैं। वेदर फोरकास्ट आप देखते हो कभी कभी टीवी में, तो वेदर फोरकास्ट क्या है? नॉर्मली एवरीडे वेदर फोरकास्ट में कुछ अलग ही होता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है, करेक्ट। सी फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, सुबह जब आप उठते हो तो यू फील क्लाउडी है, आज शायद बारिश होगी, दिस दैट एंड ऑल। आफ्टरनून व्हेन इट इज 12:30 इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट एंड फुल सनी ब्राइट डे। दोपहर तक एकदम धूप निकल आती है, तो यू से इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज नॉट क्लाउडी नहीं है, गर्मी है, एंड फुल ब्राइट डे, सन इज शाइनिंग ब्राइट। ओके, देन इवनिंग इट स्टार्ट्स रेनिंग समटाइम्स, शाम होते होते कभी कभी बारिश हो जाती है। तो वेदर कीप्स चेंजिंग, बट जो लॉन्गर पीरियड के लिए वेदर जो हम एवरेज कंडीशंस चेक करें तो उससे हम उस जगह की क्लाइमेट के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-3 दिन तक ठंडी है, फिर एक दिन ठंडी नहीं है, फिर 2-3 दिन तक फिर ठंडी है, फिर अगेन ठंडी नहीं, तो क्या हुआ? एवरेज जब आप निकालोगे तो क्या है कि मेजोरिटी एक महीने के लिए अगर आप पूरा उसे कैलकुलेट करो तो आप क्या बोलोगे कि महीने में कुछ 4-5 दिन ठंडी नहीं थी, बाकी के दिन ठंडी थी, 1 या 2 दिन विंडी थे, विंड वॉज ब्लोइंग वेरी फास्ट। सो एवरेज वेदर कंडीशन वो पूरे 1 मंथ का अगर आप डेटा निकालो तो क्या होगा कि मेजोरिटी ठंडी वाले ही दिन थे। तो यू डिसाइड के अगर यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है इस मंथ के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर दिस प्लेस इज हैविंग कोल्ड वेदर, सो द क्लाइमेट इज कूल। तो वेदर कीप्स चेंजिंग, climate is for longer period, weather is for shorter period, climate is for longer period. The word climate refers to the weather conditions of a place over a long period of time. लंबे समय के लिए जो accumulate करते हैं, 1 महीना 2-3 महीने के लिए भी हो जाता है। It describes the weather of a place generally has throughout the year. Generally पूरे साल में हम किस टाइम से किस टाइम तक, मीन्स फॉर
किस मंथ से किस मंथ तक उस जगह पर कैसा टाइप का वेदर रहता है। देन अगेन फॉर एग्जाम्पल जनवरी से मार्च तक कैसा होता है टाइम, मार्च से लेकर जून तक कैसा होता है वेदर, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कैसा होता है वेदर। ये जो है थ्रू आउट द ईयर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम जनरल इंफॉर्मेशन, उसके वेदर कंडीशन को एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करके इसे हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ वेदर यूज हुआ ना। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सर्टेन प्लेस एंड टाइम। वेदर क्या है, वो एक एटमॉस्फेयर एक कंडीशन पर्टिकुलर प्लेस की है, बट एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए और पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है। वेदर कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ राजकोट में रहते हो तो राजकोट का वेदर अभी का जो है उससे उसी टाइम में अगर आप आपके नेबरिंग प्लेस जो है जूनागढ़ जामनगर, वहां फोन करके आपके रिलेटिव से पूछो तो शायद वो अलग बोलेंगे। आप बोलोगे कि बहुत गर्मी है, इट इज सनी हॉट, दे माइट से दैट इट इज रेनिंग हियर। तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए आपने बोला था, आप अपने प्लेस के बारे में और पर्टिकुलर टाइम पर बोल रहे हो। शायद दोपहर के बाद आपको लिए भी रेनी हो जाए, क्या पता। करेक्ट। सो वेदर is the condition of atmosphere at a certain place and time. उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बोला जाता है वेदर को। वेदर जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, when we say that it is hot or cloudy today, we are referring to the weather of a particular place at that particular moment. अगर हम ऐसा बोले कि टुडे इट इज वेरी हॉट और क्लाउडी, तो क्या हुआ कि आज के लिए हमने वर्ड यूज किया टुडे, तो वो आज के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम बोल रहे हैं। हम पूरे कंट्री के लिए नहीं बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आपको उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपने बोला और उस पर्टिकुलर डे के लिए बोला। मे बी नेक्स्ट डे चेंज हो सकता है, नेक्स्ट डे शायद हॉट ना भी हो, विंडी हो, रेनी हो, who knows, correct? But when we say that it is cold in Himalayas and hot in desert, अगर हम ये बोले कि it is cold in Himalayas and hot in desert, we are referring to the climate of these places. तो हम इन प्लेसेस के क्लाइमेट के बारे में, जनरल क्लाइमेट के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिमालयाज में आप किसी भी टाइम पे जाओ, किसी भी मंथ में जाओ, थ्रू आउट द ईयर कोल्ड ही रहता है। एंड डेजर्ट्स में जैसे ही आपको डेजर्ट अगर मैं वर्ड यूज करूं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि गर्मी है, गर्मी है। करेक्ट। तो ये क्या हुआ, इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। हम यहाँ पर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वेदर की नहीं कर रहे हैं। वेदर के लिए जब बोलते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है। ओके, इट कीप्स चेंजिंग, वेदर कीप्स चेंजिंग, बट क्लाइमेट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर विच यू हैव टू रिमेम्बर। ये आपको याद रखना है। जैसे ही कोई वेदर बोले तो आपको ये इमीडिएटली दिमाग में आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, and when they are talking about climate, it is for long period of time. Okay, now we have studied about the different regions of India. India के अलग अलग regions के बारे में already हमने study कर लिया। कौन कौन से regions थे? Physical divisions को ही regions बोलते हैं ना। अलग अलग regions है, northern mountain, northern plain, Great Indian Desert, then the Plateau region, then the coastal plains and the islands. ये 6 फिजिकल डिविजन्स है, ये अलग अलग रीजन्स है इंडिया के। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द क्लाइमेट ऑफ वन रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर। तो ये जो 6 फिजिकल डिविजन्स थे, इनके क्लाइमेट भी इसी तरह, हर फिजिकल डिविजन के क्लाइमेट भी अलग अलग है। जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्लाइमेट है, उसी टाइप का क्लाइमेट नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स में है
वहां का क्लाइमेट है और फिर प्लेट्यूज का क्लाइमेट है अगेन डिफरेंट। प्लेट्यूज का एंड कोस्टल प्लेन्स का क्लाइमेट डिफरेंट। कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के भी क्लाइमेट में डिफरेंस होते हैं। ओके, सो ऑल दीज रीजन्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। लेट अस फाइंड आउट व्हाई दिस इज सो। तो ये डिफरेंस क्यों आते हैं? पूरे के पूरे फिजिकल डिविजन्स जो हमने डिस्कस किए वो पूरे के पूरे इंडिया के ही है, तो इनके क्लाइमेट में क्यों अलग है? कंट्री भी एक ही है, इंडिया। ऑल दिस फिजिकल डिविजन्स आर इन इंडिया। ये इंडिया के ही फिजिकल डिविजन्स है, इंडिया में ही अलग अलग टाइप के फिजिकल डिविजन्स हैं, तो फिर इनके क्लाइमेट क्यों अलग है? अगर शिमला, कश्मीर, कुल्लू मनाली ये सारे के सारे प्लेसेस जो है वो इंडिया में है और वो कूल प्लेसेस माने जाते हैं, तो हमारा गुजरात भी इंडिया में ही है, तो वो कूल क्यों नहीं माना जाता है? कुछ तो रीजन होगा। कभी सोचा है कि उसमें रीजन क्या होगा? नहीं, बिकॉज यू आर टू स्मॉल टू थिंक अबाउट इट, बट नाउ इट इज द राइट टाइम दैट यू शुड लर्न, यू शुड नो कि क्यों ऐसा है। सो इन दिस चैप्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। हमने ऑलरेडी व्हाट इज क्लाइमेट वी लर्न। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम टाइप ऑफ वेदर जो प्रोलॉन्ग होता है तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है। व्हाट इज वेदर? वेदर इज द कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो शॉर्ट पीरियड का टाइम। अब फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट, ये चेंजेस है क्लाइमेट में। अलग अलग प्लेस पे एक ही टाइम में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट भी होता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज यहाँ पर मैं बोलूँ कि सनी डे है, तो मे भी अहमदाबाद में आज रेनी है। दोपहर को 12 बजे यहाँ पर फुल सनी है, दोपहर को 12 बजे वहां फुल रेनी है। दोनों गुजरात के ही प्लेसेस है। करेक्ट। फिर भी देयर इज चेंजेस। तो व्हाई देयर इज चेंजेस? तो उसमें कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। नाउ factors affecting climate. First point, the location of the place determines its climate. कोई भी प्लेस का लोकेशन मतलब वो किस जगह पर सिचुएटेड है, उससे इस जगह का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। आपने अगर देखा है मैप या ग्लोब, तो आपको पता होगा कि द सेंटर ऑफ द ग्लोब इज हैविंग अ लाइन विच इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन इक्वेटर। ये इक्वेटर, ये भी हमको पता है कि इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज ऑफ सन पड़ती है, उसकी वजह से इक्वेटर गर्म रहता है। तो इक्वेटर से जितनी नजदीक वो प्लेस होगी उतनी गर्मी ज्यादा है। इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते जाओगे तो गर्मी कम होगी। सो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस इट्स क्लाइमेट। प्लेसेस लोकेटेड नियर सी हैव कूल क्लाइमेट कंपेयर्ड टू द प्लेस व्हिच आर अवे फ्रॉम द सी। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी बहुत जरूरी है। पहला है लोकेशन ऑफ द प्लेस, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द सी जरूरी है कि सी जो हमारे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ये 3 सी है इंडिया के सराउंडेड एरिया में। तो इन सी के नजदीक जितनी वो जगह लोकेटेड है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहो कि वहां का क्लाइमेट ऐसा क्यों है, तो पहले ये देखना है कि वो सी से नजदीक है तो कूल रहेगा, सी से दूर है तो गर्म रहेगा। ओके, सो प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी हैव कूल क्लाइमेट। नियर द सी है तो कूल क्लाइमेट रहेगा कंपेयर्ड टू द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी। किससे कूल रहेगा? तो कि कंपैरेटिवली जो प्लेसेस सी से दूर है उनसे कंपैरेटिवली सी से नजदीक वाले एरियाज में ठंडक रहती है। Again, the places located in hills and mountains are cooler than the plains. Hills and mountains के ऊपर जो places located है, वहां पर weather जो है वो ठंडा रहता है, climate ठंडा रहता है। जो नीचे plains वाले एरिया है, वो क्या है? वो थोड़े गर्म रहते हैं। इसीलिए हमने देखा होगा कि समर सीजन में हम प्रेफर करते हैं किसी हिल स्टेशन पे हॉलीडेज के लिए जाना। चाहते हो ना हॉलीडेज के लिए समर में, तो आप नॉर्मली हिल स्टेशंस ही पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि वहां ठंडक रहती है।
तो जैसे जैसे ग्राउंड लेवल से हाइट होते जाओगे वो आपको नेक्स्ट ग्रेड में आएगा कि ऑल्टीट्यूड उसे बोलते हैं। जैसे जैसे ऊपर होते जाओगे तो क्या होगा, ठंडी थोड़ी ज्यादा होगी, गर्मी कम होगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस also depends on the temperature, rainfall and direction of the wind blowing in this region. तो फैक्टर इफेक्टिंग में एक ये भी है कि वहां का टेम्परेचर कितना है। 45 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां ठंडी होगी नहीं, गर्मी है। और अगर कहीं मैं बोलूं कि 3-4 डिग्री का टेम्परेचर है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वहां टेम्परेचर डाउन है तो ठंडी ज्यादा होगी। नेक्स्ट रेनफॉल, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जितनी ज्यादा बारिश होगी तो उतने ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे और ठंडक रहेगी, करेक्ट। तो बारिश जहां पर नहीं है, वेयर देयर इज नो रेनफॉल और वेयर देयर इज स्कैंटी रेनफॉल मींस वेरी लिटिल रेनफॉल, इन दोज प्लेसेस ट्रीज एंड प्लांट्स वोंट ग्रो प्रॉपर्ली एंड ड्यू टू विच द टेम्परेचर इंक्रीजेस बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड शेड, दे प्रोवाइड द ब्लोइंग विंड, उससे जो हवा आती है उससे भी ठंडक रहती है। मगर जहां पर प्लांट्स ट्रीज है ही नहीं तो ठंडक पहुंचेगी वहां पर? नो, सो रेनफॉल इज ऑल्सो नेसेसरी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द रीजन। और जिस रीजन के बारे में आप बात कर रहे हो तो वहां विंड जो ब्लो होकर आती है वो किस डायरेक्शन से ब्लो होकर आती है, इससे भी उस जगह के क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ठंडी एरिया से विंड ब्लो होकर इस एरिया के ऊपर से पास होती है, करेक्ट, तो क्या होगा कि विंड जो है वो ठंडी होती है और इस जगह का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, करेक्ट। आप अगर नोटिस अगर आपने किया हो तो कि आपके फ्रिज, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज का दरवाजा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला है और आप वहां नजदीक से गुजर रहे हो तो उस रेफ्रिजरेटर में से जो विंड ब्लो होकर आती है, जो ब्रीज ठंडी ठंडी निकलती है, उससे आपको भी ठंडा फील होगा, करेक्ट। तो समर सीजन में तो बहुत मजा आता है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, मम्मी देख नहीं रही है तो 2 मिनट फ्रिज खोल के सर अंदर रख देते, क्यों? क्योंकि गर्मी लग रही है, करते हो ना? हाँ, तो सेम वे जो विंड ब्लो होकर आती है वो किस डायरेक्शन से आती है उसके ऊपर भी उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एज आई टोल्ड यू, ग्लोब में जो बीचों बीच द सेंटर ऑफ द ग्लोब इक्वेटर, तो ये इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पर ये प्लेस लोकेटेड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट क्या होगा। So distance from the equator is also an important factor because the overall climate of a place depends on how far it is from the equator. क्योंकि overall climate जो है वो इसी पॉइंट पर डिपेंडेड रहता है कि इक्वेटर से जैसे जैसे नजदीक रहोगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन वहां पर पड़ती है, और इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो गर्मी कम लगेगी क्योंकि स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन वहां पर होती है, डायरेक्ट नहीं होती। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था लोकेशन के बारे में कि कौन सी जगह पर ये लोकेटेड है प्लेस, whether it is near to sea or away from the sea. Then we also discussed the temperature, rainfall and direction of the wind. टेम्परेचर कितना है, डायरेक्शन ऑफ द विंड क्या है, रेनफॉल कितना होता है उस पर्टिकुलर जगह पर, उसके बारे में। वी ऑल्सो डिस्कस द हाइट, जैसे हिल स्टेशन माउंटेन, जैसे हाइट पर जाओगे तो ठंडी रहेगी, नीचे प्लेन्स में है तो गर्मी रहेगी। देन वी डिस्कस दैट distance from the equator is also important to decide the climate of a particular place. The climate of a place has an effect on the life of the people. किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो उस जगह पर जो लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल पर भी असर करता है, इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ठंडी की जगह पर रहते हो तो पूरे साल गर्म कपड़े ही पहनोगे, और आप अगर किसी गर्मी वाले जगह पर रहोगे तो पूरे साल आप कॉटन के कपड़े पहनोगे। क्यों? क्योंकि गर्मी लगती है। सेम वे ईटिंग हैबिट भी डिपेंड करता है ना।
ठंडी वाली जगह पर गर्म खाना प्रेफर करते हैं और गर्मी वाली जगह पर ठंडा खाना प्रेफर करते हैं। आपको यहाँ जब एकदम विंटर सीजन आ जाए तो आप रात को क्या करते हो, गर्म दूध पीते हो, करेक्ट। काढ़ा मिलता है बाहर, कावा कहते हैं, वो पीते हो। तो ऐसी गर्म चीजें, चाय पीते हो, ऐसी गर्म चीजें प्रेफर करते हो विंटर सीजन में। सूप पीते हो गर्मा गर्म, तो ऐसी गर्म चीजें। और वही अगर समर का टाइम है तो क्या करते हो, गोला खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, ये सब, करेक्ट। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर पीपल जो वहां, दोज पीपल हु आर लिविंग देयर, देयर लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड, उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट करता है। द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, द काइंड ऑफ फूड दे ईट एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन देयर। और वहां पर जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो भी वहां के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ठंडी में अच्छे ग्रो होते हैं तो कुछ क्रॉप्स गर्मी में ग्रो होते हैं। कुछ क्रॉप्स के लिए पानी बहुत जरूरी है, कुछ क्रॉप्स के लिए पानी उतना ज्यादा नहीं है तो भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रीजन गेट्स हेवी रेनफॉल, द सॉइल विल बी रिच एंड फर्टाइल। किसी भी रीजन पे बहुत ज्यादा बारिश है तो वहां की सॉइल एकदम फर्टाइल होगी। फर्टाइल मीन्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे उस सॉइल में रहेंगे, तो उसे फर्टाइल सॉइल कहेंगे। Plenty of crops can thus be grown in this region and the region will prosper and thickly populated। तो उस जगह पर जहां पर बारिश ज्यादा है वहां की सॉइल फर्टाइल है तो क्रॉप्स अच्छे ग्रो होंगे। अच्छे ग्रो होंगे तो उस वजह से बहुत सारे लोग वहां आकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्रॉप्स ग्रो करने हैं और उन क्रॉप्स को बाद में सेल करके पैसे कमाने हैं, करेक्ट। सो दोज हु आर फार्मर्स दे रियली प्रेफर स्टेइंग इन द प्लेसेस वेयर द सॉइल इज वेरी फर्टाइल। सो यहाँ पर हमने आज के सेशन में ये पढ़ा कि व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स में हमने लोकेशन ऑफ द प्लेस, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर नियर टू द सी और अवे टू द सी, इफ दे आर अबाउ द ग्राउंड लेवल और टुवर्ड्स द ग्राउंड लेवल, दैट इज हाइट। हिल स्टेशन माउंटेन्स है या प्लेन्स है, ये अफेक्ट करता है। देन वी ऑल्सो लर्न दैट द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये भी डिसाइड करते हैं क्लाइमेट के बारे में। देन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कोई भी जगह कितनी दूरी पर है ये भी अफेक्ट करता है। देन वी लर्न दैट फाइनली climate of a place also affects the life of the people living there। क्लाइमेट जो है वो उस जगह के पीपल की लाइफ पर भी बहुत असर करता है। तो यहाँ मैं इस सेशन को कंप्लीट करती हूँ। इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेशन में हम सीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में कितने सीजन्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में ऑलरेडी आपको पता है कि समर, विंटर, मॉनसून ये तो है ही, बट दो और स्प्रिंग और ऑटम शायद आपने सुने हो शायद ना सुने हो, तो इनके बारे में डिटेल स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू ऑल विल गो थ्रू द चैप्टर टिल वेयर आई हैव कंप्लीटेड इन दिस सेशन थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स। आप यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उतना आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ लेना। ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, जो वर्ड्स टेक्स्ट बुक में आते हैं उन्हें करेक्टली प्रोनाउंस करना। एंड आई एम सेंडिंग अ PDF which is fill in the blanks page. Please fill the answers by yourself by looking into the textbook or discussing it with your friends. Bye.